Women's Day to all the superwomen here and to you as well, Shirley. A very warm, Happy Women's Day, and thank you for always inspiring me in our work. And today we'll have a great session. Please go ahead. Thank you, Bindu. Welcome on the call and welcome everyone. So, before going into our session, again, as usual, we need to follow a few protocols. So, you're not supposed to record or not taking pictures is not allowed. So, all you need to do is focus on today's session. Grab the insights, and there are so many articles, there are so many interesting studies. So, we will be talking about all today in today's call. So, if you guys are accessible to your notebooks and pens, please note down the important points. It's not only for women, it's for men too. And before that, I would like to give you instructions on this call. So if you want to listen this session in your own language, preferred language, all you need to do is click on the globe icon as shown in this picture, towards right side of your screen. Click on that globe. So when you click on it, this screen appears. So here, first of all, you need to do two things. One is mute your original audio. So when you mute the original audio only, you will be able to listen this in your different languages. Then you can also select your preferred languages like Hindi, Kannada, Tamil, Telugu, Malayalam, and Bengali. And you all know, so Bengali will be shown as Spanish. So again, I repeat, click on Spanish for Bengali language, right? And Hindi, Telugu, Kannada, as usual, you can select your language, but you need to mute your original audio. But if you are using this, or if you're listening this call in your mobile phones, again, all you need to do is click on that three dot icon that you see on your mobile phone. Again, click on your language interpretation option. So there's an option called language interpretation. Click on that. Then again, the same thing, mute your original audio, select your preferred language, and again, you can click on done to proceed. So let me begin the session, with lots of energy and, lots of enthusiasm. I would like सुन सकते हैं. तो यहाँ पर आपको बता दें कि मैं बिंदुश्री से कुछ पूछना चाहूंगी कि ये जो उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, ये जो कथन यहाँ लिखा हुआ है, तो वो जो है इसके बारे में बताएंगी. बहुत बहुत धन्यवाद शर्ली. बिंदु कह रही है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि एक बहुत ही जो कविश्री है माया एंजेलो, वो कह रही है कि जब महिलाएं अपना ध्यान स्वयं रखती हैं अपने, तो वो जो है वो अपनी सबकी स्वयं की सबसे अच्छी दोस्त बन जाती हैं. तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हम लोग कभी भी हम लोग हमेशा जो है प्राथमिकता अपने आप को नहीं देते. ये प्राथमिकता जो है अपने परिवार परिजनों को देते हैं, दूसरे लोगों को देते हैं और अपने आप को पीछे रखते हैं. तो ये जो महिलाओं का जो दिवस है, जो वुमेन्स डे है, यहाँ पर प्राथमिकता देनी है अपनी सेहत को उतनी ही जितना हम लोग अपने परिजनों को, जिनसे हम प्यार करते हैं, उनके स्वास्थ्य को देते हैं. तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं और सबसे पहले आज के तथ्य को देखते हैं. तो सबसे पहला तथ्य यह है कि आपको पता है शैली कि महिलाओं को जो है अपने जो जीवन की जो चक्र है, उसके हर एक स्टेज के ऊपर उनको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है. तो शर्ली कह रही है कि जी हाँ बिल्कुल, और ये बहुत ही जो है एक असाधारण सा तथ्य लगता है, लेकिन हम लोग इसको जो है वो ध्यान से नहीं देखते हैं. आइए हम लोग अब जो आयु चक्र है उसको 4 भागों में विभाजित करते हैं. तो देखिए, जब हम लोग जब 20 देखिए, जब हम शुरू करते हैं तो आप देखेंगे हम लोग हमेशा भागते रहते हैं और सभी महिलाएं भागती रहती हैं. तो चाहे आप कॉलेज जा रहे हैं, चाहे आप कार्य कर रही हैं, आप स्कूल जा रही हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके पास अपने लिए समय नहीं होता, अपने लिए हाइड्रेशन का समय नहीं होता. तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जब आप 20 की उम्र में हो तो हाइड्रेशन का ध्यान रखें. तो जो महिलाएं 20 की हैं वो अपना हाथ खड़ा करें. तो आपको यहाँ पर पानी का सेवन बहुत ज्यादा करना है. और जब मैं हाइड्रेशन की बात करती हूँ तो केवल और केवल मैं पानी की बात नहीं, बल्कि मैं बात कर रही हूँ, और यहाँ पर कितने सारे लोग जो है वो 20 की आयु की हैं, तो बहुत बढ़िया.
तो जब मैं यहाँ पर हाइड्रेशन की बात करती हूँ, जब मैं यहाँ पर जल योजन की बात करते हैं, तो हम लोग केवल पानी की नहीं बल्कि चाय, कॉफ़ी उन सभी चीज़ों की बात करते हैं। तो देखिए जो कैफ़ीन का जो शॉट है, तो देखिए आप 200 एमएल कैफ़ीन जो है, वो आप एक बार लेकर आप पानी नहीं पी सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आप जो है 200 एमएल की कॉफ़ी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अपने शरीर के लिए मैं जल योजन या हाइड्रेशन कर रही हूँ। जी नहीं। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप हाइड्रेशन करें। दूसरी चीज़ जो आपको जब आप 20 के होते हैं तो आपको देखना है कि आप क्या खा रही हैं, आप क्या स्नैक खा रही हैं। आप अपना ध्यान केंद्रित है जो है वो कैल्शियम के ऊपर दे सकती हैं, जो ऐसा खाना जो कि पोटेशियम में, कैल्शियम में समृद्ध हो, जो कि आपके पाचन शक्ति में संतुलन बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। और जो महिलाएँ जो हैं वो जो 30 की हैं तो वो थम्स अप करें। और तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि आपको एक बार फिर से ध्यान देखना है कि आप क्या कैलोरी इनटेक आपकी कितनी है, आप कितनी कैलोरी की खपत कर रही हैं। आप जो है आप ये देख रही हैं, आप पुनः विचार कर रही हैं कि आप कितना जो है वो आप व्यायाम कर रही हैं। ये समय आपका व्यायाम का नहीं होगा, लेकिन ये देखना होगा कि आप कितना जो है वो आप समय जो है वो व्यायाम, अगर व्यायाम नहीं है तो आप जो आप हलचल कर रही हैं वो कितना है, क्योंकि आपको ध्यान देना होगा कि 30 तारीख के अंदर आपको जो है आपका जो वजन है वो बढ़ जाता है और आपका मसल लॉस भी होता है, क्योंकि आप व्यायाम नहीं कर रहे होते, आप प्रोटीन नहीं ले रहे होते। तो आप अपने प्रोटीन का ध्यान रखिए, आप अपने Coming to 40s, all the women again, 40s give thumbs up, right? Now, 40s, you're protecting your heart. How do I do that? अपने हृदय को आपको उसकी सुरक्षा का ध्यान देना है। तो जब आप 40 से 55 के साल के होते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको दिल की बहुत बीमारियां होती है, तो आपको अपना ध्यान अपने हृदय का रखना है, फैटी एसिड्स का ध्यान रखना है, या आपको एल-आर्जिनिन का ध्यान रखना है, या फिर आपको जो है फैट्स और कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बनाकर रखना है अपने खान-पान में। और आपको क्या देखना है, आपको अपने विटामिन डी का भी ध्यान देना है और एंटीऑक्सीडेंट्स का भी ध्यान देना है। तो ये वो समय है जहां पर आप लगातार तरीके से आप अपने विटामिन डी का ध्यान रख रहे हैं, अपने कैल्शियम का ध्यान रख रहे हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके अपने स्वास्थ्य के लिए। जो आपके भविष्य में कोई जो बीमारियां जो आपको आ सकती हैं, संभावना है, उसके लिए आप अपने आप को तैयार करते हैं। 50, जब आप 50 के होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप बहुत ज्यादा फाइबर खाते हैं। और एक अध्ययन किया गया था कि 50 के बाद जो है दिल के जो जो रोग हैं उनके होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम लोग क्या करें, तो हम लोगों को फाइबर जोड़ना है अपने खान पान में, सॉल्युबल इनसॉल्युबल सॉल्युबल बहुत सारा ओमेगा 3। उसके हम बाद हम लोगों को विटामिन डी 12, उसके बाद विटामिन बी 12 और आपके प्रोबायोटिक्स और बाकी की चीजें आपको उनका ध्यान रखना है। तो अपने फाइबर का ध्यान रखना है, ओमेगा 3 का ध्यान रखना है और मिनरल्स का ध्यान रखना है। तो ये आपके जो 50 से 60 के बीच में आपको ध्यान रखना है। अब जब आप 60 पहुंच जाते हैं तब आपको क्या करना है, तब आपको जो है सारे न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना है, जो भी महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स हैं, और आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारा प्रोबायोटिक्स आपको अपने अपने जो खान पान में जोड़ना है, डाइट में जोड़ना है। और हर एक चरण में हम लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। कैलोरीज का ध्यान रखना है। हम लोगों को कैलोरीज की आवश्यकता बहुत कम होती है, क्योंकि हमारा जो पाचन शक्ति है वो पुरुषों से अलग होती है, परंतु कितना, और देखिए हम लोग उसकी गणना करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग अपने दिमाग में इसकी गणना कर सकते हैं कि ये आज हमने खाया है तो ये आज कैलोरीज है, इतना जो हमारा खान पान में हाई प्रोटीन मिल रहा है, प्रोटीन की मात्रा अधिक रही है। तो ये सब चीजें हम लोगों को दिमाग में गणना करने की आवश्यकता है। उसके बाद विटामिन और मिनरल्स की जो जरूरत है ये बहुत जरूरी है। आपके अल्फा फोलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन ई, आपको हर रोज इनकी आवश्यकता होती है। तो सभी महिलाओं को, सभी जो उनकी महिलाएं हैं उसको संतुलन लगाकर चलना है। तो दूसरा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको
अलग-अलग उम्र में किस-किस चीज़ की महिलाओं को आवश्यकता होती है, उसको आप पता चला होगा। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर महिलाओं को हमेशा जो है अपना ध्यान प्रजनन और हार्मोनल स्वास्थ्य में अधिक ध्यान रखना चाहिए महिलाओं को। तो बिंदुश्री आप बताएँ तो शर्ली बिल्कुल सही कह रही है कि देखिए मूल रूप से जो हमारा जो खान-पान है, न्यूट्रिशन है, हमारी जीवन शैली जो है वो बहुत प्रभावित करती है। और हमारे जो हार्मोनल स्वास्थ्य के ऊपर और साथ ही साथ प्रजनन स्वास्थ्य के ऊपर और यौनिक स्वास्थ्य के ऊपर बहुत प्रभावित करती है। तो जो तो देखिए जो भी हमारे शरीर में जो भी प्रक्रियाएँ चल रही हैं, वो 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 हार्मोनल और दूसरे जो अंगों की वजह से होते हैं। तो हर एक प्रणाली जो हमारे शरीर के अंदर है, वो हार्मोन्स द्वारा संचालित होती है। और हमारा जो प्रजनन जो जो प्रजनन प्रणाली है वो हार्मोन्स के ऊपर आधारित होती है। तो अब क्या होता है कि इस चरण के अंदर जो ये जो पीढ़ी आ रही है तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं जो लड़कियों को हो रही है, युवा महिलाओं को हो रही है, वो अभी जो है जो जहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चों के अंदर जो दिक्कतें आती हैं, वो बच्चे जो अभी किशोर अवस्था भी प्राप्त नहीं जो या किशोर अवस्था जिनके पास है, तो जैसे कि उनको जो मासिक धर्म है वो लगातार नहीं होता, पीरियड्स जो है जो है वो सही समय से नहीं होते। और ये इसलिए होता है क्योंकि जीवन शैली ऐसी है, क्योंकि जो हमारी पीढ़ी की जो जीवन शैली है वो बहुत अलग है। हम लोगों के लिए, हमारे लिए भी हमारे जो मासिक धर्म था वो वो 13 से 15 के बीच में थी, लेकिन अब जो है ये काफी काफी जल्दी शुरू हो रही है क्योंकि जीवन शैली बदल गई है। और इस समय के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण है जो जो आप जब हम लोग अपनी किशोर अवस्था की बात करते हैं और किशोर अवस्था से लेकर मेनोपॉज तक की बात करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी उम्र क्या है, क्योंकि ये वो समय है जहाँ पर जो महिलाएँ हैं किशोर अवस्था में, जो जो लड़कियाँ हैं, वो जानना शुरू करेंगी कि मासिक धर्म हो रहे हैं, हार्मोनल्स जो ऊपर-नीचे होते हैं, उसके बारे में जानना शुरू करेंगी। और फिर जब परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी की जो उम्र है 25 से लेकर 40 के अंदर, जब जब वो एक ऐसे समय में होती हैं जब वो प्रजनन के लिए बहुत उपजाऊ यानी कि फर्टाइल होती हैं, तब उस समय जो है आप जो है महिलाएं वो एक उच्च फर्टिलिटी रेट के अंदर होती हैं। तो बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो 25 साल की उम्र से, और अगर हम लोग जो हम स्वस्थ होंगी, हमारे जो न्यूट्रिशनल स्थिति है वो अच्छी है, तभी हम लोग जो है जो हमारा जो ये उपजाऊ समय है वो और ज्यादा समय तक के लिए चल सकता है। तो न्यूट्रिशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ जब एक महिला जो है वो जब वो रजोनिवृत्ति की तरफ यानी मेनोपॉज की तरफ पहुंचती है, पहले ये 50 से ऊपर था, परंतु अब जो है जिसको हम लोग पेरी मेनोपॉजल यानी कि रजोनिवृत्ति से पहले भी पूर्व जो है, ताकि 40 से 45 के बीच में भी ये मेनोपॉज जो है वो हो रहा है, जिसे हम पूर्व मेनोपॉज या पूर्व रजोनिवृत्ति कहते हैं। तो ये भी जीवन शैली के ऊपर है कि आप किस प्रकार से आपकी जीवन शैली रही है। तो हम लोगों को अपनी जो 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 निदान है, जो सिम्टम्स है, उनको कैसे देखें। तो यहाँ पर जब हार्मोनल जो जो ऊपर नीचे हो रहा है, तो उनका ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो अब ये जो हार्मोनल बदलाव हैं, ये हार्मोनल बदलाव जो हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि एस्ट्रोजन के जो 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 स्तर हैं, वो एस्ट्रोजन के साथ-साथ और भी बहुत सारे हार्मोन हैं, जिनकी वजह से ये होता है। और इसी के साथ-साथ देखिए जब जब एस्ट्रोजन जो है वो कम होता है, तो वो हमारे पेट की चर्बी में वृद्धि का कारण बन सकता है। यानी कि इनका जो संबंध है, एस्ट्रोजन का संबंध जो पेट की चर्बी है, वो उससे उल्टा है। यानी कि अगर एक बढ़ता है तो एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। एंड यहाँ पर और एक बार जब रजोनिवृत्ति शुरू होती है, यानी कि जब जब मेनोपॉज होता है, तो महिलाओं का जो भार है, जो वजन है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसके लिए और यहाँ पर जो 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 एक 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 बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। तो आइए एक और एक तथ्य को देखते हैं
तो यहाँ पर एक और जो तथ्य है वो है सोया के ऊपर। और आपको जो प्रोटीन जो मिलते हैं वो सोया से मिलते हैं, सबसे बड़ा स्रोत है वो प्रोटीन का। और तो सोया आइसोफ्लेविन जो होते हैं वो फाइटोएस्ट्रोजन का एक स्वरूप होता है, जो आपके जो मासिक धर्म जो होता है, माहवारी होता है, उसके पहले जो लक्षण दिखाई देते हैं उसमें मदद करते हैं। तो शर्ली, क्या इसके बारे में आप ज्यादा बता सकती हैं? धन्यवाद बिंदु। पीएमएस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि सोया आइसोफ्लेविन्स क्या होते हैं। एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है और आइसोफ्लेविन पेड़ों से मिलने वाली एक पोषक तत्व है, और इसकी वजह से इसे फाइटोएस्ट्रोजन कहा जाता है। तो ये एक इस तरह का एस्ट्रोजन है, वो थोड़ा कमजोर होता है, हार्मोन होता है ये। अब पीएमएस के बारे में थोड़ा जानते हैं, पीएमएस क्या होता है, और इसके बारे में जाने बिना हम कैसे इसका अनुभव कर रहे हैं लगभग हर महीने। हम सब जानते हैं कि किस तरह से मौसम बदलता है। आप में से जो लोग बेंगलुरु में हैं वो जानते होंगे कि कैसे रोज मौसम बदलता रहता है। तो एक मौसम के बदलने की प्रक्रिया के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं पीएमएस को। आप देखते हैं कभी कभार तेजी से बारिश होती है, तूफान आ जाता है। उसी तरह से आपको गुस्सा आता है, आप चिड़चिड़ापन महसूस होता है। जैसे बारिश होती है उसी तरह से आपको कभी कभार बिना किसी कारण से रोना भी आ जाता है। तो इस तरह से आप पीएमएस को और मौसम को आपस में उनकी तुलना कर सकते हैं। तो माहवारी से पहले 5 दिन पहले, 7 दिन पहले इस तरह के आपको लक्षण दिखाई देते हैं, जहाँ पे चिड़चिड़ापन ज्यादा हो जाता है, आप सो नहीं पाते हैं, आपके चेहरे पे पिंपल आने लगते हैं, थकान महसूस होने लगती है। और जैसे कि मैंने पिछले सत्र में आपको बताया था कि जब अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं तो आपकी जीवन शैली में कुछ गलती है, कुछ सुधारने की जरूरत है। अगर आप सो के उठे हैं तो आपको थकान महसूस नहीं होनी चाहिए, आपको चिड़चिड़ापन महसूस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो यह सब पीएमएस के लक्षण है। अगर आपको समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। और एक या दो नहीं, 90% जो महिलाएं होती हैं जो माहवारी से गुजर रही होती हैं उनको पीएमएस का अनुभव होता है। और उस उम्र में करीबन जैसा कि मैंने कहा 90% जो महिलाएं होती हैं उनको हर महीने इस तरह के लक्षणों का अनुभव होता है। और क्योंकि आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन ऊपर नीचे होते रहते हैं, बढ़ते घटते रहते हैं, इसकी वजह से आपके जो मुख्य हार्मोन है प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजन वो संतुलित स्तर पे नहीं रहते हैं, और जिसकी वजह से पीएमएस होता है। और इसकी वजह से आपके मूड में लगातार बदलाव होता रहता है, ठीक से आप खाना नहीं खा पाते हैं क्योंकि आप इसकी वजह से आप थकान महसूस करते रहे, आपकी पीठ में दर्द होता है, आपके चेहरों पे मुहासे निकलने लगते हैं। ये सभी पीएमएस के लक्षण हैं। आपके लिए आप में से कुछ लोगों के लिए ये जानकारी नहीं हो सकती है। आपके लिए, आप में से जिन लोगों के लिए जानकारी नहीं है, आप थम्स अप के जरिए मुझे बताएं, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। चौथा तथ्य जिसके बारे में आपको आज सिखाया जाएगा, तीसरा वाला जो फाइटोन्यूट्रिएंट के बारे में था वो बहुत ज्यादा दिलचस्प था। आइसोफ्लेविन के बारे में हमने जाना। चौथे तथ्य के बारे में अब जानेंगे। अब हमारे जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, उसमें किसमें से हमें सोया आइसोफ्लेविन मिलता है? आपका जवाब देना है। आप क्यूएनए सवाल जवाब के सत्र में इसका जवाब दे सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं चौथे तथ्य की तरफ। आप सभी जानते हैं कि हम व्यस्त जीवन जीते हैं। हम अपने खुराक के ऊपर, अपने खान पान के ऊपर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। इसमें ध्यान रखने की रखने की जरूरत है कि 25 साल की उम्र के बाद हमारे शरीर में
कोलेजन का उत्पादन कम होने लगता है। ये जो आप तस्वीर देख सकते हैं, जैसे कि 25 की उम्र बढ़ती है तो जो कोलेजन का जो उत्पादन होता है स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से जो कोलेजन जो हमारे शरीर में पैदा होता है वो कम होता चला जाता है 25 साल की उम्र के बाद। और 30 साल की उम्र के आसपास देखें तो 1%, 2% की कमी दिखाई देती है, और 40 के बाद 10%, 20% तक की कमी हो जाती है कोलेजन के उत्पादन में। तो अब आपको बिंदु बताएंगे कि कोलेजन होता क्या है, ये कम क्यों होता है, किस तरह से कम होता है और इसको किस तरह से रोका जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शर्णी, बिंदु बोल रही हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप में से ज्यादातर पहले से ही जानते हैं कि कोलेजन एक प्रोटीन है। तो आपके शरीर में जो भी प्रोटीन होते हैं उसमें से 25 से 30% आपके शरीर जो प्रोटीन होता है जो आपके शरीर को पूरा स्वरूप देता है, जिससे आपका शरीर बना होता है, वो कोलेजन होता है। जैसे हम कहते हैं कि शरीर को बनाने वाली ईंटें होती है प्रोटीन, उसी तरह से प्रोटीन को बनाने वाली ईंटें होती है कोलेजन। और हमारी त्वचा में भी ये होता है। तो पानी को अगर हटा दें तो हमारे शरीर का जो वजन होता है उसमें से बड़ा हिस्सा कोलेजन का होता है। कोलेजन क्या काम करता है? 3 मुख्य काम करता है कोलेजन हमारे शरीर में। सबसे पहले हमारे शरीर को लचीलापन देता है। जैसे किस तरह से एक अगर रबर बैंड को हम खींचे तो वापस वो अपनी आकार में आ जाता है, उसी तरह कोलेजन भी आपके त्वचा को, आपकी मांसपेशियों को लचीलापन देता है, और ये त्वचा को रक्षा भी देता है। अगर नशीली चीज अगर आपकी त्वचा में आ जाती है तो वो फैले ना, ये देखने का काम करता है कोलेजन। सिर्फ हमारी त्वचा का ही रक्षा नहीं करता है कोलेजन, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे शरीर का 25 से 30% जो प्रोटीन होता है वो कोलेजन से आता है। तो जैसे कि पहले कहा कि त्वचा में तो होता ही है कोलेजन, लेकिन उसके साथ हमारे नाखूनों में, हमारे मांसपेशियों में, हमारे जबड़ों में, हमारी हड्डियों में, वहां पे भी कोलेजन मिलता है, क्योंकि कोलेजन एक तरह का प्रोटीन है। तो जहां जहां भी प्रोटीन होता है वहां पे आपको कोलेजन मिलेगा। तो इन सभी अंगों में जो बढ़त होती है, जो विकास होता है उनका, वो कोलेजन के योगदान की वजह से होता है। आप सभी को बड़ा अंदाजा होगा कि कोलेजन हमें कहाँ से मिलता है। तो जल्दी से हमारे जो पोर्टफोलियो है उसमें कोलेजन बढ़ाने का काम कौन सा प्रोडक्ट करता है, कौन सा उत्पाद करता है, ये आपको बताना है सवाल जवाब वाले सत्र में। और जब आप अपना जवाब लिख रहे हो, देखते हैं कि शैली ने जो सवाल पूछा था कि आइसोफ्लेविन किस प्रोडक्ट में होता है, उसका जवाब जानते हैं। मैं देख सकती हूँ कि बहुत सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया जवाब दिया आपने शीतल। सोया आइसोफ्लेविन का जो आपने जवाब दिया बिल्कुल सही है। प्रसन्न ने भी सही जवाब दिया है। राधा कृष्ण हेगड़े ने तो बहुत अच्छा जवाब दिया है। और कोलेजन सप्लीमेंट, कोलेजन की मात्रा बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोडक्ट है, उसका भी बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। खासतौर पे ज्योति ने, बानू ने, अश्विनी ने, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इसका जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अब चलिए एक और तथ्य के बारे में जानते हैं। शर्ली, क्या आपको मालूम है कि महिलाओं ऑस्टियोपोरोसिस की जो दिक्कत होती है उसका खतरा महिलाओं में ज्यादा होता है, और हमारे शरीर का जो 99% कैल्शियम होता है वो हमारी हड्डियों में जमा होता है। जी धन्यवाद बिंदु, शर्ली बोल रही है ये। जैसा कि मैं जवाबों को देख रही हूँ, साफ तौर पे लगता है कि हमारे जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, पोषक तत्वों के बारे में सही तरीके से जानते हैं। जैसा तक आपने कहा ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, मैं 2 चीजों के बीच में तुलना करना चाहती हूँ। आपने स्पॉन्ज इस्तेमाल किया होगा अपने घर में, यानी जो पानी सोखने का जो एक
चौकोर तरह का जो स्पंज होता है, अपने शरीर की हड्डियों को अगर हम एक स्पंज की तरह देखें, तो हमारी हड्डियों के बीच में कुछ जगह होती है। जब हड्डियां नई होती हैं, वो काफी मजबूत होती हैं। जैसे कि स्पॉन्ज नया होता है तो बहुत नरम होता है, आसानी से पानी सोख सोख लेता है। लेकिन लगातार अगर आप इस्तेमाल करते रहे, तो धीरे धीरे सोखने की क्षमता उसकी कम हो जाती है, वो सख्त हो जाता है, उसमें छेद होने लगते हैं। उसी तरह हमारी हड्डियां भी हैं। खासतौर पे महिलाओं में इस एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन की वजह से हमारी जो हड्डियां हैं, धीरे धीरे वो कमजोर होती जाती है, उसमें कैल्शियम की मात्रा कम होती जाती है। इसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस नाम की जो बीमारी होती है, उसका खतरा महिला में 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में बढ़ता चला जाता है। ये जो चित्र है, ये दिखाता है बहुत अच्छे तरीके से कि स्वस्थ हड्डियां कैसी होती है और ऑस्टियोपोरोसिस के बाद हड्डियां किस तरह से हो जाती है। जिनकी थोड़ी उम्र ज्यादा है, अगर वो चलते वक्त अचानक से उनकी हड्डी टूट जाती है ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से। इन सब का कारण है ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि हमारे एस्ट्रोजन की मात्रा महिलाओं में ज्यादा होती है और वो ऊपर नीचे होती रहती है। उसकी वजह से कैल्शियम सोखने की शक्ति है, जो हड्डियों की विटामिन डी सोखने की जो क्षमता है, उसकी वो कम होती चली जाती है। उसकी वजह से हमारी जो हड्डियों की घनता है, डेंसिटी है, वो कम हो जाती है और उसे ही ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। अगर आप देखें कि रोज हमें कितने कैल्शियम की जरूरत होती है, तो वो उम्र पर निर्भर करता है। सिर्फ इतना नहीं है कि आपको 800 या 1000 या जितना भी आपको बताया गया, अगर उतना कैल्शियम लें तो आपकी हड्डियां स्वस्थ रहेंगी। आपको कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम, विटामिन डी, पोटेशियम, इस तरह के हड्डियों से जुड़े हुए जितने भी मिनरल हैं, उन सभी की आवश्यकता होती है। लेकिन कैल्शियम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप किशोरियों की बात करें, यानी 10 से 18 साल की जो लड़कियां हैं उनकी बात करें, जो स्कूल जा रही हैं या जो कॉलेज जाना जिन्होंने शुरू किया है, या जो हाई स्कूल में पढ़ रही हैं, यानी जो 10 से 18 साल की उम्र के बीच में है, उनको 800 मिलीग्राम हर रोज कैल्शियम की जरूरत होगी। अगर उनको इतना कैल्शियम मिलता है तो उनको हड्डियों की दिक्कतें नहीं होगी। अगर 19 से 50 की आपकी उम्र है, यानी जो वयस्क महिलाएं हैं, चाहे शादी हो चुकी है या काम कर रही हैं या घर पे रह रही हैं, उनको भी कैल्शियम की जरूरत होती है। चाहे आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, शारीरिक मेहनत कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हैं, आपको क्योंकि आपकी जो हड्डियों से कैल्शियम कम होता रहता है, इसलिए आपको 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की हर रोज जरूरत होती। जैसे कि जो स्पंज को आपको बनाए रखने के लिए ज्यादा क्षमता की जरूरत होती है, जैसे जैसे स्पंज बड़ा होता है, पुराना होता जाता है, उसी तरह उम्र बढ़ते बढ़ते आपको कैल्शियम की मात्रा जो जरूरत होती है, वो भी ज्यादा होती जाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप गर्भवती हैं या आपने अभी बच्चों को जन्म जन्म दिया है, तो आपको कितना कैल्शियम लेना है, किस तरह से लेना है, उसके बारे में आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए, क्योंकि न सिर्फ आपकी जरूरत होगी, बल्कि आपके पेट में जो बच्चा है, या अगर आप स्तनपान करा रही हैं तो उस बच्चे को भी आपके जरिए कैल्शियम की जरूरत होगी। इसके अलावा मेनोपॉज के बाद में महिलाओं को 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की जरूरत होती है, क्योंकि इस दौर में खासतौर पे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा ज्यादा होता है। तो ये अलग अलग जरूरत होती है, अलग अलग उम्र में, उम्र के अलग अलग दौर में कैल्शियम की जरूरत होती है। इसकी एक ऊपरी सीमा भी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी रोज की जो जरूरत के से ज्यादा अगर आप कैल्शियम लेते हैं, तो इसका क्या प्रभाव हो सकता है, तो इसके बारे में एक ऊपरी सीमा बनाई गई है। तो अगर आप वयस्क हैं या 19 से 50 वर्ष की उम्र है, तो 2500 मिलीग्राम हर रोज आप ले सकते हैं कैल्शियम, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा लेंगे तो फिर इसका नुकसान हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी जानकारी है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने इसे लिख लिया होगा। और छठे तथ्य की तरफ हम आगे बढ़ेंगे।
तो आगे बढ़ते हैं महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में छठे तथ्य की तरफ। तो आप जो है ये जो आर्टिकल है आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यदि आपको अभी भी पता है कि ये आर्टिकल जो है ये क्यों हो रहा है, और ये आप चीज इसका ध्यान रखिएगा कि कि आप इसका पाथ देख लीजिए। ये है myherbalife.com, और आप अपने उत्पादों के लिए जा सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जो विज्ञान से जुड़े हुए जो लेख हैं वो वहां पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास एक खास श्रेणी है जिसके ऊपर हम लोग केवल और केवल डाइजेस्टिव हेल्थ की बात करते हैं, पाचन स्वास्थ्य की बात करते हैं। और एक बहुत ही बढ़िया जो लेख जो है डॉक्टर डेविड ह्यूबर द्वारा लिखा गया है, और इसका नाम है कि एक ब्रह्मांड जो आपके भीतर है। तो किस प्रकार से ये जो है वो आपके जो जो गट हेल्थ है, ये जो है वो किस प्रकार से उसको प्रभावित करता है। तो आपका आज का गृह कार्य यही है कि आप इसके बारे में पढ़ें और इसके बारे में सीखें। तो यहाँ पर ये आपको पता रहेगा कि आपका जो आंत का यानी कि गट हेल्थ है वो क्या है, आंत स्वास्थ्य क्या है। और यहाँ पर ये गट बैक्टीरिया जो है, जो माइक्रोबियोम है, ये किस प्रकार से आपको जो है, तो ये किस प्रकार से आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ये किस प्रकार से माइक्रोबियम स्वास्थ्य को बेहतर करता है, किस प्रकार से हम लोगों को अपनी जीवन शैली के अंदर बदलाव चाहिए ताकि हम लोग जो है इन सैनिकों को बेहतर बना सके, और किस प्रकार से ये माइक्रोबियोम जब बेहतर होंगे तभी ये हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे। तो इसको पढ़ना आपको आज चाहिए, और ये आपका गृह कार्य है। आइए अगले तथ्य की तरफ चलते हैं कि उन्होंने बताया कि किस प्रकार से, शर्ली ने बताया कि हमारा जो पाचन प्रक्रिया है वो किस प्रकार से वो मुंह से शुरू होती है और बड़ी आंतड़ियों तक जाती है, और इससे और उसके बाद कैसे शरीर से बाहर निकलती है। तो हमारे जो विटामिन है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और ऐसा ही एक विटामिन है, वो है विटामिन B12 का। आप लोगों को पता ही है कि जो कैल्शियम का जो सोखने की क्षमता है वो कम हो जाती है जब आप रजोनिवृत्ति यानी कि आप मेनोपॉज पर पहुंचते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है वो नीचे जा रहा होता है। तो 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 जैसा कि मैंने आपको कहा कि इनका जो संबंध है वो विपरीत है। तो मेनोपॉज जब हमारे जो जो मासिक धर्म है वो हमारे लिए स्थायी रूप से जब बंद हो जाता है, तो तो जो 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 वजन है वो बढ़ जाता है, और तो उसी तरह जो कैल्शियम का जो सोखने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है। तो इसीलिए जो आपको उसी की वजह से जो है आपकी हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपके शरीर जो है वो कैल्शियम सोख नहीं रहा होता या कम सोख रहा होता है। तो इसीलिए आपको कैल्शियम का सेवन ज्यादा करने की आवश्यकता है। उसी तरह B12 जो कि एक मुख्य विटामिन है, और ये 50 के बाद इसके भी प्रकृति में बदलाव आता है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। तो शर्ली कह रही है कि जी हाँ, देखिए हम आपके आंतरिक आंतों के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, गट हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो एक बहुत ही दिलचस्प चीज है जो इस लेख में लिखा हुआ है कि उन्होंने
ये कहा है कि आंत एक ऐसा अंग है जिसको हम भूल चुके हैं। तो आप इस चीज को इस चीज को मानेंगे बिंदु कि हम लोग इसको भूल चुके हैं। जैसे कि हम लोग अपने पाचक प्रक्रिया का ध्यान रखते हैं, अपनी त्वचा का ध्यान रखते हैं, लेकिन जो 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 हमारा पेट है, जो एक गट है, जो आंत का जो स्वास्थ्य है, उसको भी भूल चुके हैं। आपको बता दें, जब आप छोटे होते हैं तो आपके पास 40 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, 30-40, उनकी जो संख्या है वो कम हो जाती है। और इसीलिए जो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपनी प्रतिरोधक क्षमता को जो है, आप उसको अगर बढ़ाना चाहते हैं तो ये आप गेट गट हेल्थ का, आंत स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। तो आपका जो सुबह का नाश्ता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि आप अपने जो 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 अपने गट हेल्थ का ध्यान रख सकें। अगर आप ज्यादा प्रोटीन वाला आप अगर नाश्ता करते हैं तो आपका गट हेल्थ स्वस्थ रहता है। तो आपका ये जो जो लेख है, ये काफी चीजों के बारे में बात कर रहा है। और जिस प्रकार से बिंदु ने आपसे निवेदन किया है कि आपका गृह कार्य है, तो आप उसको जरूर पढ़िएगा। आइए विटामिन B12 की तरफ वापस चलते हैं कि किस प्रकार से सोखने की क्षमता 50 साल के बाद कम हो जाती है। तो देखिए, जो सोखने की जो चुनौती है, ये अब्जॉर्प्शन चैलेंज जो है, ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैं व्यायाम भी कर रही हूँ और मैं खाना भी खा रही हूँ, परंतु मेरा शरीर जो है वो क्या कर रहा है? मैं 100% विटामिन अपने शरीर में सेवन कर रही हूँ, परंतु चूंकि मैं 50 साल से ज्यादा की हूँ, तो जो 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 उसका सोखने की क्षमता है, शरीर की जो सोखने की क्षमता है, वो बहुत कम है। तो 10, वो कहते हैं कि 10 से 30% से जो वयस्क हैं, जो 50 साल के ऊपर हैं, उन वो B12 की जो उनकी जो सोखने की क्षमता है वो काफी कम हो जाती है। और इसके ऊपर क्या क्या निर्भर है? आपकी शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी मानसिक स्वास्थ्य, और विटामिन B12 बहुत जरूरी है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। 20 साल की आयु के बाद जो आप सप्लीमेंट्स के माध्यम से, मल्टीविटामिन के माध्यम से आप इन्हें ले सकते हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो एक जो है वो क्रिस्टलाइन प्रारूप होता है, जिसको हम साइनो कोबालामिन बोलते हैं। और ये जो है, ये आपके शरीर में सोख सकता है। और जो कुछ अध्ययन किए गए हैं कि जो सोखने की क्षमता 50 साल के बाद कम हो जाती है, 20%, 30%। परंतु जब आप उसको सही रूप में लेते हैं, जैसे कि अगर आप एक किसी बच्चे को एक पूरी रोटी देते हैं, तो वो क्या करेंगे? वो जो है वो उनको उसको देखेगा भी नहीं, अनदेखा कर देगा। लेकिन अगर आप उस रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, तो वो बच्चा जो है, जब आप उसको देंगे, तो आप वो बच्चा जो है वो सोखने की क्षमता उसकी बढ़ेगी। तो जैसा कि आप सभी को सभी लोग जानना चाहते होंगे कि कोबालमिन ये कहाँ प्राप्त होगा। तो आपका जो B12 है, ये साइनोकोबाल्मिन जो है वो फूड सप्लीमेंट्स में आपको प्राप्त होगा। और आपको अपने डाउनलाइंस को ये भी बताना होगा कि ये जो है आपके शरीर में किसी भी आयु में, चाहे आप 50 के हो, चाहे आप 40 के हो, चाहे 30 के हो, वो सोख लिया जाता है। तो इस प्रकार आप जो है B12 के लिए अपने शरीर को के सोखने की क्षमता को आप बना सकते हैं। तो आपको शोध करनी होगी कि आप B12 जो है वो साइनोकोबाल्मिन किस प्रकार आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य है। और अब हम लोग आखिरी चरण की जो जो आज, माफ कीजिएगा, आखिरी तथ्य जो हमारा है, वो है 8वां तथ्य है कि किस प्रकार से आप आराम करते हैं, आप सोते हैं, आप डाइट का ध्यान रखते हैं, न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखते हैं, परंतु क्या आप व्यायाम कर रहे हैं? और इस चीज को हम लोगों को पुनः देखने की आवश्यकता है। जब हम व्यायाम करते हैं, तो वो केवल केवल जिम जाने का मतलब व्यायाम नहीं है, परंतु योगा करना या घर की गतिविधियों पे ध्यान देना, ये इसलिए भी जरूरी है ताकि हम लोग अपने जो एंडोर्फिन को बढ़ा सकें। और ये एंडोर्फिन जो है, ये एक हैप्पी हार्मोन, यानी कि खुशी देने वाला एक हार्मोन है। और ये आपकी मदद करता है कि आपकी त्वचा जो है वो सुर्खरू हो। और साथ ही साथ जो है व्यायाम जो है वो इसके अंदर मदद करता है। सबसे पहला मांसपेशियों के लिए व्यायाम मदद करता है। और जब एंडोर्फिन्स जब रिलीज होते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। तो यहाँ पर एक अध्ययन किया गया है। तो आप जो है, आप देख सकते हैं कि आप किसी लेख को देख सकते हैं कि व्यायाम किस प्रकार से आपको प्रभावित करता है। और ये मदद भी करता है।
आपको मदद करता है कि आपको युवा प्रतीत कराता है। जो लोग लगातार योगा करते हैं, वो किस प्रकार से जो है वो दिव्य दिखते दिखाई देते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो रूटीन में, वो दिनचर्या में योगा, अपना जीवन शैली, खाना, सोना और इन सभी चीजों का वो बहुत ध्यान ध्यान देते हैं। तो महिलाओं को इन सभी चीजों के ऊपर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो देखिए, जब आप मांसपेशियों की बात करते हैं, तो देखिए मांसपेशियों जो है वो आपके शरीर से निकल जाती हैं। तो उसके लिए आपको बचाने के लिए क्या करना है कि आपको एंटीऑक्सीडेंट्स लेने पड़ते हैं, हाई यानी कि उच्च गुणवत्ता के प्रोटीन्स भी लेने पड़ते हैं। तो इन चीजों का आपका ध्यान रखना होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ आ रहा होगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प चीज जो मैंने उस लेख के अंदर पढ़ी कि हमारे जो शरीर है वो वाकई में बहुत ही उत्कृष्ट है। लेकिन जब वो लगातार तरीके से वो जो है एक एक अच्छे जीवन शैली की तरफ जाती हैं, अच्छे खाने की तरफ जाती हैं, तो क्या होता है? तो हम लोग जो है अपने एक बेहतर प्रारूप जो है अपने शरीर का प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि काफी ज्यादा प्रेरणादायक है सभी महिलाओं के लिए। तो यदि ये आपको अच्छा लगता है तो आप थम्स अप दीजिए, और यदि आपको लगता है कि आप अपने शरीर को और बेहतर बना सकते हैं, जो चुनौतियां आपको दिनचर्या में दिखाई देती हैं, जब आपका जो जो जीवन शैली, जब आप सक्रिय जीवन शैली अपनाते हैं, अच्छा खान पान अपनाते हैं, तो आप मुझे थम्स अप और हार्ट मुझे दोनों दीजिए। और ये वाकई में जो है बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। तो चलिए आइए देखते हैं कि अगर आप जो है हमारे सत्र के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, आप लेख के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो आप एच एन लर्न के अंदर जा सकते हैं। तो ये एच एन ग्रो है, और जो तो ये अब एच एल लर्न है। तो ये है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन के ऊपर, या आप myherbalife.com के ऊपर भी अपनी पहुंच बना सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, और हम लोगों ने काफी लेख देखे, बहुत सारी चीजें सीखी। अब बिंदु जो है हम लोगों को बहुत ही दिलचस्प चीज बताने वाली है, और वो है हमारी ई बुक, जो कि बहुत शीघ्र जो है वो आने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल शैली। और इसी के साथ साथ आप लोगों को ये भी पता होगा कि हमारे पास एक प्रोडक्ट ई बुक भी है। तो अगर आप इसको इसके बारे में नहीं पता है, तो ये बहुत बढ़िया समय है आप लोगों के लिए कि आप जो है इस प्रोडक्ट ई बुक को जरूर देखें। और ये जो है इसको अद्यतित यानी कि अपडेट भी किया गया है। किस प्रकार? देखिए, आप सभी लोगों के पास एक फ्लायर आया होगा कि हमारे प्रोडक्ट लेबल्स के अंदर जो है वो बदलाव आ रहे हैं, और समय के साथ साथ कुछ बदलाव लेबल्स में आ रहे हैं। तो वो सारे के सारे बदलाव जो हैं वो हमारे प्रोडक्ट ई बुक के अंदर मौजूद है। और इसी के साथ साथ जो एक और दिलचस्प जो चीज हमारे पास है, तो जो प्रोडक्ट ई बुक जो है वो एक प्रकार का एक शब्दावली है, जो एक आप जो है सुबह की जो है वो जब आप सुबह की सैर के लिए जाते हैं, तो आप अपनी जो जो प्रोडक्ट की जो जानकारी है उसको बढ़ा सकते हैं। तो प्रोडक्ट ई बुक जो है एक सारांश है, जहां पर आपके पास सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न भी हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जब हम लोग कॉल्स करते हैं अलग अलग एसोसिएट्स के साथ, तो वो प्रश्नों का भी उत्तर हम लोगों ने यहाँ पर दिया है। तो और उन्होंने हमारे साथ कॉल के ऊपर बात की होगी, और वो प्रश्न भी हम लोगों ने यहाँ पर डाले हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो भी इसके अंदर है। तो तो यहाँ पर हम लोग जो है एक फ्लायर इसके बारे में आपसे साझा करने वाले हैं कि ये कब जो है वो रिलीज होने वाला है। और ये जो है ये हमारे एचएन ऐप के ऊपर भी मौजूद है। और इसी के साथ साथ आपने आपके पास जो है एक एक्सपर्ट टॉक भी होगा। अब ये एक्सपर्ट टॉक क्या है? और हमने ये एक्सपर्ट टॉक की घोषणा भी की थी, जहाँ पे हमारे जो विशेषज्ञ हैं
उन्होंने बहुत नई बातें बताई थी। कुछ जो प्रमुख सवाल आए थे पिछले कुछ सालों में, उनका जवाब दिया था उन्होंने। और इसे भी एक सीरीज के रूप में, एक श्रृंखला के रूप में इसको विमोचन किया गया है। सीरीज में कुल 7 उनके वक्तव्य हैं, और ये भी अब एक प्रोडक्ट के रूप में, वीडियो सीरीज के रूप में, आप एक प्रोडक्ट के रूप में इसको अब उपलब्ध कराया गया है। अगर प्रोडक्ट में आप जाते हैं तो वहां पे एक्सपर्ट टॉक के नाम से यह प्रोडक्ट भी आपको मिलेगा। ये छोटे छोटे वीडियो की एक श्रृंखला है, सीरीज है। 3 से 4 मिनट के ये वीडियो है, और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बहस के जो मुद्दे बने हुए हैं, जैसे फार्मूला 1 पोषण के लिए कितना जरूरी है, या वजन घटाने या बढ़ाने के लिए पोषण कितना जरूरी है, इस सब के बारे में हमारे विशेषज्ञ ने अपने इन वीडियो में बात की है। इसके साथ साथ में एक और बहुत दिलचस्प चीज है, इसके बारे में आपको शेयरली बताएंगी। धन्यवाद बिंदु, इस एक्सपर्ट टॉक श्रृंखला के बारे में हमें बताने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस टॉक को देखकर, सुनकर, जो हमारे विशेषज्ञ हैं लुई जी, उनके ज्ञान से आप लोग भी जानकार बनेंगे। इसके अलावा अगर आप माई हर्बल लाइफ की वीडियो लाइब्रेरी की चैट HLF पॉडकास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे 2 नई सीरीज आ रही हैं। अजय खन्ना जी, जो एक बहुत ही प्रेरणादायक व्यक्ति हैं, जो दुनिया के कोने कोने में जाते हैं और लोगों को अपने ज्ञान से लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो भी इसमें बता रहे हैं कि उनके सबसे मनपसंद प्रोडक्ट कौन से हैं। तो इसको भी आप जरूर देखिएगा। आप अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे इस वीडियो लाइब्रेरी में मौजूद इस पॉडकास्ट के जरिए। इसकी दूसरी सीरीज फिलहाल आने वाली है। इसके अलावा भी बहुत कुछ नई नई चीजें हैं जो आगे आने वाली हैं, जिसके बारे में आपको समय समय पे हम बताते रहेंगे। और अब समय आ गया आपके इस सवालों का। आपके कुछ सवालों का जवाब आपको एक्सपर्ट टॉक श्रृंखला में भी मिल सकता है, जैसा कि बिंदु ने बताया था। तो उसको आप जरूर देखेगा, और आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको उसके जरिए मिल जाएगा। अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं, ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं आज के इस सत्र के बारे में, तो चैट के अंदर हमने अपना ईमेल आईडी लिखा है। आप वहां पे ईमेल करके हमसे अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। herbalife.com एक ईमेल आईडी है जिस पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, और हम इस सत्र से जुड़ी हुई आपके जो भी सवाल होंगे, प्रश्न होंगे, वो हम आपको भेजेंगे। write to us at herbalife.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। और एक सर्वेक्षण का लिंक भी चैट में डाला गया है। आपसे सभी से अनुरोध है कि इस लिंक के जरिए आज के सत्र के बारे में फीडबैक जरूर दें आप हमें। इस सर्वे के